Assalamualaikum dear students, welcome to the online class of English class 3, and today we are discussing our written work of the chapter the poem that was playtime. So let's start. As you know that we have done the reading explanation of this poem, so now we are discussing the playtime explanation. So write down the topic that is playtime and write focus that is rhyming words. Rhyming words, as you know, I explained before that these are the words having same sounds. For example, I, spy, base, place, tree, me, way, pay, bad, dad, wire, fire, gold, hold, yell, well, now, how, fight, might, niece, please, shed, head, liar, chair, complete, treat. So dear students, we have 14 rhyming words in this poem. So after completing this must draw ending line and draw margin line on your every page of the copy. So dear students, this was your first topic, that was rhyming words, and now we are move forward to the next focus, that is question answer. So your writing must be neat and clean, and you must write in Nelson writing. So write down the topic that is playtime and focus is question answer. So question number 1 is, what is the mission? You have write the mission in the inverted commas, that we are giving the focus to the mission. What is the mission? The mission is getting some apples. यानी उनका मुहिम क्या था? उनका मुहिम ये था कि उन्होंने एप्पल्स तोड़ने थे. Question number 2 is, what is the giant beast? So inverted commas, giant beast in inverted commas. Answer is, the giant beast is their father. So put full stop after completing the answer. Number 3 is, what is the safe place or base? So answer is, the safe place is golden shed. Number 4 is, what is the dark liar? Inverted commas you can see. The answer is, the dark liar is the old golden chair. So question number 5 is, what do the children do to celebrate their win? The answer is, the children eat the apples. So dear students, after completing every answer must draw ending line, so it gives a good presentation of your copy plus your work, and it shows that the answer is completed. So draw margin line, ending line, and dear student, your copy work of this poem is completed. So you can see. So now, as our copy work is completed, dear students, we have now book exercise of this poem on book page number 23. These are the question answers. Selective question answers are done in copy. So now we have another 2 question answers, and these are, who do you think says, ah the monster, the beast has got you now? यानी कि ये बात जो थी, ये किसने कही थी कि अब मॉन्स्टर जो है आ चुका है और इसने तुम्हें पकड़ लिया है? तो ये बात उसकी सिस्टर ने कही थी. यानी यू विल राइट द आंसर, दैट इज द सिस्टर. आपने 1 वर्ड आंसर यानी शॉर्ट आंसर यहाँ पर लिख देना है. अब जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पर लिखने का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्कस करने का है. ये है कि राइट 2 शॉर्ट अकाउंट्स डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स इन द चिल्ड्रंस इमेजिनेटिव गेम, व्हाट रियली हैपन्स. तो डियर स्टूडेंट कहते हैं कि उनकी गेम में क्या हुआ था, जो उन्होंने इमेजिन किया था. इमेजिनेटिव गेम में ये हुआ था कि उन्होंने सोने को हासिल करना था और बीस्ट से भागना था. यानी बीस्ट से चुप के उन्होंने सोने को हासिल करना था, और आखिर में उनको सोना मिल गया. लेकिन ये है कि व्हाट रियली हैपन्स, लेकिन सच में क्या हुआ था? सच में ये हुआ था कि ये 2 बच्चे थे और इनके फादर थे. ये इन तीनों के दरमियान गेम थी, और इन दोनों ने जो जासूस बने थे वो तो इमेजिनेटिव था, लेकिन सच में गोल्ड की जगह इन्होंने एप्पल्स तोड़ने थे, और ये फादर जो थे ये बीस्ट बने थे. इन फादर्स बीस्ट से इन्होंने भागना था वहाँ से और गोल्ड को हासिल करना था, यानी इस एप्पल्स को हासिल करना था. तो इन्होंने एप्पल्स को हासिल कर लिया था और फादर से ये लोग भाग गए थे और एप्पल्स खा लिए थे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया कि इमेजिन में इन्होंने ये किया था और रियल में ये था. यानी ये डिस्क्राइबिंग आपकी एक्सरसाइज थी, और यहाँ पर आपने फर्स्ट का आंसर लिख देना है, द सिस्टर. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द पोएम. I did not notice the beast beady eye opening slowly. My dad could be sly. Okay, यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है डियर, और स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि अब हमें इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ. Who does not notice the beast? यानी तो कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया है कि हु डज नॉट नोटिस द बीस्ट, यानी वो कौन था उस गेम में जिसने बीस्ट को नोटिस नहीं किया या बीस्ट को देखा नहीं.
तो वो थी द गर्ल। उसने एप्पल तो तोड़ लिए थे लेकिन पीछे उसने देखा नहीं कि बीस्ट भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज़ द बीस्ट, और बीस्ट कौन था, तो आंसर इज़ फादर। अब क्वेश्चन नंबर सी है कि हाउ डज द पोएट शो अस व्हाट इज़ रियली हैपन। तो हमें क्या बताया गया था, पोएट ने मतलब जो पोएम लिखी थी कि रियल में क्या हो रहा था, रियल में क्या जो था हो रहा था, तो वो ये था जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि रियल में ऐसा था कि वो 3 बच्चों यानी 2 बच्चों और उनके फादर के दरमियान वो गेम हो रही थी। तो ये था कि गोल्ड वाज 2 एप्पल्स, गोल्ड जो थे वो एप्पल्स थे, और डैड वाज स्लाई यानी डैड जो था उनका जो उस गेम में मौजूद था, और स्पाई वाज द गर्ल्स, स्पाई वाज द गर्ल्स, यानी कि जासूस जो थी वो 2 बच्चियां थी और उनके फादर जो थे वो 20 थे, और जो गोल्ड था वो एप्पल्स थे। तो ये रियल में ये हो रहा था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है व्हाट हैपन नेक्स्ट, के इसके आगे फिर क्या होगा, ये क्या हुआ, तो है कि गर्ल्स ईट द एप्पल्स। तो ये इसका आंसर हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी बुक एक्सरसाइज जो कि थी पेज नंबर 23 पर। सो मस्ट राइट डाउन दिस इन नीट एंड टाइडी राइटिंग एंड मेक श्योर कि आपकी बुक की राइटिंग इतनी हो कि आपके आंसर जो हैं इनके सामने क्लियरली आ सकें। सो डियर स्टूडेंट, फॉर नाउ स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।